اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی رحمت سے یہ موقع بسعادت و غنیمت ہمیں اور آپ کو مہیا ہوا، جس پر ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ یقیناً اللہ کے طرف سے ہمیں اور آپ کو عطا کی گئی بے شمار و انمول نعمتوں میں سے ایک بہت ہی بڑی، اہم، خاص اور عظیم نعمت یہ درس قرآن میں شمولیت ہے، جس میں کسی نہ کسی اعتبار سے ہم اور آپ حصے دار ہیں۔ یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید یہ دنیا کی سب سے سچی کتاب ہے، جو اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی۔ قرآن کا حکم قیامت کی صبح تک ہے، اور اس کی آیات اور صورتیں ایک بندہ مومن کو پرسکون ماحول عطا کرتی ہیں۔ دور حاضر کے حساب سے یا مطابق دیکھا جائے تو مسلمانوں کے اندر جہاں پر دینی بیداری لازم آتی ہے، وہاں پر ساتھ ہی ساتھ یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ قرآن کے تعلق سے بھی ہم اپنا ایمانی ثبوت دیں اور بیدار ہوں، کیونکہ قرآن سے دوری اور قرآن کو چھوڑنے کے لحاظ سے آج ہم ذلیل و خوار ہو گئے، کیونکہ یہ قرآن نہ صرف یہ کہ ہمارے عقیدے کے مطابق مذہبی کتاب ہے، بلکہ یہ ہماری کامیابی کا ضامن بھی ہے اور راز بھی ہے۔ علامہ اقبال نے، جو شاعر مشرق تھے، قرآن کے تعلق سے بہترین شعر انہوں نے بیان کیا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ یعنی جو مسلمان پہلے معزز تھے، صحابہ کی جماعت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو ان کو یہ اعزاز قرآن سے دل لگی کی وجہ سے ملا، اس لیے اللہ نے ان کو معزز کہا، صحابہ کو، کہ وہ قرآن کو سنتے تھے، سمجھتے تھے، اس پر چلتے تھے، عمل کرتے تھے، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ یعنی آج اگر ہم پسماندہ ہیں، ذلیل و خوار ہیں، اور ذلت ہمارے مقدر میں آئی ہے، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو چھوڑے ہوئے، تاریخ کہتے ہیں چھوڑنے والے، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ چیزیں آج ہم کو دیکھنی پڑ رہی۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں سورۃ النساء آیت نمبر 50 سے ترجمہ و تفاسیر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی، اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین تو ہمیں حق بات کہنے، حق بات سننے، اور ہم سبوں کو الاول فالاول، پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ سورۃ النساء آیت نمبر 50 میں اللہ نے کہا، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کیسے یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، گڑھتے ہیں۔ تم کیوں نہیں دیکھتے کہ کیسے یہ لوگ اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھتے ہیں؟ وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا، اور یہ
کھلی گناہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، یعنی ان کا یہ کام کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا یہ کافی ہے کہ یہ کھلا گناہ ہے، جرم ہے۔ اللہ پر کیا جھوٹ باندھتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے بیٹے ہیں، یہ جھوٹ باندھنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ جس رب نے اپنے بارے میں کہا قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کے اندر کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، اللہ الصمد۔ جو بھی اللہ تعالیٰ پر الزام، بہتان اور وہ بات ابھی بھی آگے جو جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ یہ ہے نا کہ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، کیوں نہیں دیکھتے، دیکھو کیسے لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ تو اللہ الصمد کا کیا معنی ہوا؟ جو بھی الزام، عیوب و نقائص اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے یہود و نصارہ یا مشرکین مکہ و کفار مکہ لگاتے ہیں، اللہ تمام عیب سے پاک ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، اللہ نے صاف صاف کہہ دیا۔ تو پھر یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ تو غلط ہوا نا، شرک ہو گیا، اللہ کا تو کوئی بیٹا نہیں، توحید کا انکار ہو گیا۔ تو یہی کافی ہے، وکفا بھی اسما مبینہ، کھلا ہوا اوپنلی گناہ کے لیے کافی ہے۔ کیا کافی ہے؟ کہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ تو اللہ پر جھوٹ باندھنا یہی ہے کہ ایک یہ کہ اللہ کا بیٹا ہے، اور بھی بہت سارے جھوٹ اللہ پر باندھے گئے کہ سارے اختیارات، کنٹرول اللہ کے ہاتھوں میں نہیں ہے، اللہ بھی کہیں کہیں نہ کہیں بیٹا مجبور ہے، اسی لیے اس نے فرشتوں کی ٹیم کو رکھا ہوا ہے۔ ایک فرشتہ بارش برساتا ہے، ایک فرشتہ روح نکالتا ہے، ایک فرشتہ عذاب دیتا ہے۔ بہت سے لوگ اس چیز کا بھی اقرار کرتے ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بہتان کرتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ کے کنٹرول میں سب کچھ نہیں ہے، ایک اللہ اتنا سارا کام کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن یہ سب کے سب جھوٹ ہے، کیونکہ وہ آیت کریمہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، پیچھے گزر چکی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو صرف کہتا ہے کن فیکن، کیا اللہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکن تو ہو جاتا ہے، اتنا ہی کافی ہے، کسی سے کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سب کی مدد کرنے والا ہے۔ آگے آیت نمبر 51 میں اللہ نے کہا الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں، وہ یقولون للذین کفروا، اور کافروں کے تعلق سے کہتے ہیں ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ لوگ ایمان والے سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ بتائیے، ایک تو جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ کافر ایمان والوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں جبت اور طاغوت کس کو کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا، یعنی اہل کتاب، تورات اور انجیل نازل کیا گیا ان کے اوپر، یؤمنون بالجبت والطاغوت، جبت پر اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ جبت کہتے ہیں ساحر، جادوگر ہے نا، جادوگر جس کو کہتے ہیں جادو کرتا ہے، کاہن جو ستاروں کو دیکھ کر آپ کا بھوشیہ بتائے گا، ہاتھ دیکھ کر، ہاتھوں کی ریکھا دیکھ کر بتائے گا آپ کا بھوشیہ، سب کاہن ہوتے ہیں۔ کہانت جس کو کہتے ہیں ستاروں سے اور اسی طریقے سے ہاتھوں کی لکیروں سے یا بارش یا دھوپ سے، اس طریقے سے نہیں کہتے کہ اگر آج دھوپ ہو تو ایسا ہوگا، اگر بارش ہوئی تو ایسا ہو جائے گا، سب کو جبت کہتے ہیں، یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کسی کے پاس گئے، کہا کہ آپ بتائیے ہم اتنا پریشان کیوں ہیں، 10 سالوں سے پریشان ہے، کام کاج بھی چھوٹا ہوا ہے، برکت بول کر نہیں ہے، تو ستاروں کے ذریعے سے آج کل جنتری پنتری جو نکلا ہوا ہے اس میں جوڑ گھٹاؤ کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کا فیوچر ہے۔ ان سب کو جبت کہا گیا ہے۔ بدھ کو بھی جبت کہا جاتا ہے، جس کو اللہ کے علاوہ پوجا جاتا ہے اس کو بھی جبت کہا جاتا ہے۔ طاغوت کہتے ہیں معبودان باطلا کو، چاہے وہ معبود انسانی کیوں نہ، کوئی خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں خدا ہوں۔ فرعون نے کہا تھا نا انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، تو فرعون کون تھا؟ انسان تھا۔ تو جو خدائیت کا دعویٰ کرتے یعنی اللہ کے علاوہ جو معبود بننا چاہتے، چاہے وہ بت ہو، چاہے پتھر کی مورت ہو، چاہے مٹی کی ہو، چاہے انسان ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جو یہ کہے کہ ہم خدا ہے، معبود ہے، تو اس کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے فارمولا، طاغوت یعنی معبودان باطلا،
अल्लाह को छोड़कर जिनकी इबादत की जाती है वो ताबूत है। और जिब्त कहते हैं जादूगर को, काहिन को या बुत को, ये जिब्त कहा जाता है। आगे अल्लाह ने कहा यक़ूलून लिल्लज़ीना कफ़रू हाउलाई अहद मिनल लज़ीना आमनु सबीला, जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया वो जिब्त पर ईमान लाते हैं और तागूत पर ईमान लाते हैं, और काफिरों के बारे में कहते हैं वो तो खुद ही काफिर है। जो जिब्त पर ईमान लाएगा, जो तागूत पर ईमान लाएगा, क्या मुसलमान होगा? माबूदान बातिला की इबादत कर रहा है, वो तो खुद ही काफिर है। वो काफिरों के बारे में कह रहा है कि हाउलाई अहद मिनल लज़ीना आमनु सबीला, ये ईमान वालों से ज्यादा राह रास्त पर है। ईमान वाले टेढ़े रास्ते पर है, वालेकुम सलाम, ईमान वाले टेढ़े रास्ते पर है, और जो जिब्त और तागूत की इबादत कर रहे हैं ये लोग सीधे रास्ते पर है। ये भी एक अजीब और गरीब और हैरत अंगेज बातें हैं। देखिए कुरान मजीद के अंदर जो बातें कुफार और मुशरिकीन के ताल्लुक से बयान हुई है, जो बातें गुजर रही है कुफार के ताल्लुक से, मुशरिकीन के ताल्लुक से या फिर मुनाफिकीन के ताल्लुक से, एक मोमिन होने के नाते ये बात फॉर्मूला याद रखिए कि एक मोमिन खराबी में भी अच्छाई को तलाश करता है। एक मोमिन की पहचान होनी चाहिए कि खराबी, अभी सारी चीजें खराबियां बयान की गई, यानी जिन्हें किताब का हिस्सा दिया गया वो जिब्त और तागूत पर ईमान लाते हैं और काफिरों से कहते हैं कि तुम ईमान वालों से अच्छे बेहतर हो, तो सारी की सारी खराबियां है कि नहीं है? जिब्त पर ईमान लाना खराबी है, तागूत पर ईमान लाना खराबी है, काफिरों को कहना कि तुम ईमान वालों से सीधे रास्ते पर हो, ये सब खराबियां हैं। लेकिन हम इसमें क्या तलाश करें? अच्छाई। अच्छाई तलाश करने का तरीका क्या है? वो जिब्त पर ईमान लाते हम नहीं लाएंगे, हम अल्लाह पर ईमान लाएंगे, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि मेरी इबादत करो, या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद तलब करते हैं। या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन का माना क्या? अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। क्यों? क्योंकि तू ही इबादत के लायक है, तू ही मदद करने वाला है, तेरे अलावा कोई नहीं। तो एक खराबी इसमें अच्छाई है कि हम जिब्त का इनकार करें, तागूत का इनकार करें और काफिरों से कह दे कि ईमान वालों से ज्यादा कोई राह रास्ता नहीं, ईमान वालों से ज्यादा कोई हिदायत याफ्ता नहीं है। फिर अल्लाह ताला इन्हीं के बारे में बयान कर रहा है, उलाइका लज़ीना लअनहुमुल्लाह, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की लानत है। अब सोच ले, हैरत अंगेज बात है। एक तो ये कि जिब्त और तागूत की इबादत करते हैं, वालेकुम अस्सलाम, अव्वल ये कि जिब्त और तागूत पर ईमान लाते हैं, काफिरों को कहते हैं कि आप ईमान वालों से ज्यादा अच्छे हैं, बेहतर है, सीधे रास्ते पर हैं। अब अल्लाह इनके बारे में कह रहा है कि उलाइका लज़ीना, यही वो लोग हैं, लानहुमुल्लाह, जिस पर अल्लाह की लानत है, वमन यलअनिल्लाह, और जिस पर अल्लाह लानत कर दे, फलन तजिद लहू नसीरा, तो कोई मददगार नहीं पा सकता, कोई मददगार उसका कोई मदद नहीं कर सकता, कोई मददगार हो नहीं सकता। देखें जो लफ्ज है लानहुमुल्लाह, यही वो लोग जिस पर अल्लाह की लानत है, ये नुक्ता बहुत याद रखें और आइडेंटिफाई भी करें किताब और सुन्नत के अंदर जाकर कि वो कौन कौन से काम है और वो कौन कौन से लोग हैं जिन पर अल्लाह की और उसके रसूल की लानत है। ऐसे लोगों से दूरी बनाए। अब जिस पर अल्लाह की लानत है वो समझ जाए कि रेड जोन में कभी भी उसके ऊपर अज़ाब आ सकता है। नहीं आना एक अलग बात है, नहीं आना इस बात की जमानत और इस बात की शहादत नहीं है कि उस पर अजाब नहीं आएगा। आप देखिएगा दुनिया के अंदर तो प्रैक्टिकली तौर पर मोमिन काफिर के मुकाबले में ज्यादा परेशान है। आप देख ले कहीं भी उठाकर, जो अल्लाह की इबादत करते हैं, जो अल्लाह के सामने झुकते हैं, जो अल्लाह की दीन की दावत देते हैं, जो शरई उमूर की पाबंदी करते हैं, ये जो मोमिन हमारे भाई बहन हैं, ये उन लोगों के मुकाबले में जो कुफ्र की हालत में जो अल्लाह को नहीं मानते वो ज्यादा परेशान है। मोमिन क्यों परेशान है? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का एक ही उसूल है कि जो मेरे नेक बंदे हैं, जो गुनाह उनके ऊपर है वो दुनिया में तकलीफ की सूरत में काट ले सजा, अल्लाह उनको तकलीफ में मुब्तला कर देगा, ताकि जब हमारे पास मर कर आएंगे तो हम उनको सीधा जन्नत में दाखिल कर देंगे, क्योंकि जो उनके गुनाह थे उसके एवज में उन्होंने परेशानियां उठा ली। इसीलिए जब मुसीबत आए तो कभी भी मुसीबत को लेकर आदमी, चूंकि इंसान के अंदर एक कमजोरी है और जल्दबाजी भी है, इंसान चाहता है कि कोई खुशी फौरन मिल जाए और कोई तकलीफ फौरन दूर हो जाए। अब किसी को बीमारी है, अब डॉक्टर को दिखाने जाए, सोचा कि पहली खुराक में एकदम फिट हो जाए,
ये जल्द इंसान खुलिकल इंसान हलुआ, कुरान में है कि इंसान जल्दबाज पैदा किया गया है, उसको बड़ी जल्दी मची रहती है, ये चीज बहुत जल्दी हो जाए, इतना दिन हो गया अभी तक ठीक नहीं हुई, 4 साल से बीमार है, 5 साल से बीमार है ना। इसी तरीके से कुछ चीज हासिल करना होता है तो हम चाहते हैं फौरन हासिल हो जाए, देर ना उसके अंदर, यानी अभी हम सोचे और हमको मिल जाए, जैसे जादू होता है ना, कोई चीज सोचे तो हाथ में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। एक मोमिन बंदे की आजमाइश बहुत सख्त होती है। बहरहाल अल्लाह कह रहा है कि उलाइका लज़ीना लानहुमुल्लाह, यही वो लोग जिन पर अल्लाह की लानत है। तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा, पहचान करना होगा किस किस पर अल्लाह की लानत है। अल्लाह की लानत देखिए शॉर्ट में समझिए। सबसे पहली बात, यहाँ पर यहूद नसारा की बात हो रही है, काफिरों की बात हो रही है कि इन पर अल्लाह की लानत है। तो ऐसे लोगों के शर से अपने आप को बचाए, दूर रहे, जरूरत के तहत इनसे रब्ता रखें, तो काम है तो रब्ता रखें, वरना ये अल्लाह के इनकार करने वाले हैं और अल्लाह का इनकार अल्लाह को पसंद नहीं है कि दुनिया उसका इनकार करे। अल्लाह इकरार करने वाली हस्ती है कि अल्लाह का इकरार किया जाए कि अल्लाह ही इबादत के लायक है। ये लोग मलऊन है और मलऊन की सोहबत खतरनाक, उस पर जब अजाब आएगा तो अजाब आने वाला ये नहीं दिखेगा कि साथ में बंदा मुमिन भी घूम रहा है, दोनों उसके लपेट में आएंगे। तो इन पर लानत की गई यहूद नसारा के ऊपर। इसी तरीके से हदीस के अंदर अगर हम जाएं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरत पर लानत किया जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, ऐसे मर्दों पर लानत की जो औरत की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, है ना, कि लानत की गई है। इसी तरीके से रिश्वत लेने वाले पर, रिश्वत देने वाले पर लानत की गई है। जो रिश्वत दे रहा है उसके ऊपर भी अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह की लानत है, जो रिश्वत ले रहा है उसके ऊपर भी अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह की लानत है। ये सब लोग मलऊन है। आइडेंटिफाई करे किन किन के बारे में किताब सुन्नत के अंदर जाए, किन किन के बारे में अल्लाह उसके रसूल ने लानत किया है। मर्जुल मौत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यहूद नसारा के ऊपर लानत हो, उन्होंने अपने अंबिया के कब्रों को इबादतगाह बना दिया है कि नहीं। तो ऐसे लोगों से बचे। अल्लाह कह रहा है कि उलाइका लज़ीना लानहुमुल्लाह, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की लानत है। अब आगे अल्लाह कह रहा है मै यलअनिल्लाह, और जिस पर अल्लाह लानत कर दे फलन तजिद लहु नसीरा, तो कहीं से मदद नहीं पा सकता, दुनिया की कोई ताकत है ही नहीं। तो इसका मतलब ये लोग जिन पर लानत की गई है, ये अलग बात है कि उनकी पकड़ नहीं हो रही है, लेकिन उनका कोई मददगार नहीं है, उनका कोई मददगार नहीं है। पकड़ भी हो सकती है अचानक, ना हो तो फिर फौरन मरने के बाद लोग जहन्नम में जाएंगे। और ये सबसे बड़ा खसारा है कि हम अपनी आखिरत को बर्बाद कर लें। असल कामयाबी क्या, कद अफलह मन तज़क्का, कद अफलहल मोमिनून। अल्लाह कह रहा है कि मोमिन कामयाब हो गए, मोमिन कामयाब हो गए, जो पाकी इख्तियार किया वो कामयाब हो गया। तो कामयाब बनना है, कामयाब दुनिया का भी और आखिरत का भी। दुनिया में अगर कामयाबी ना भी मिले तो आखिरत में हम चाहिए ही चाहिए। दुनिया की मुख्तसर जिंदगी है, आधी से ज्यादा जिंदगी तो जी चुके हैं, और जिस तरह आजकल मौतें हो रही सुनने में आ रहा है, उससे तो अब ये समझ में आ रहा है कि सपना देखना कि जिंदा रहेंगे, बाप बनेंगे, फिर दादा बनेंगे, फिर नाना बनेंगे, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। आज के जमाने में देखिए वक्त नहीं मिल रहा इंसान को, इंसान मर जा रहा है, कुछ नहीं बता पा रहा है, घर से निकला उधर से लाश आ रही है। उम्र दराज में अगर मौत होती है तो वो आदमी उम्र दराजी में अपने बच्चों को तो पोता पोती नाती नाती बहुत सी अपने दिल की बात रख देता है, हमारे जाने के बाद ठीक से रहना, ये कर लेना, वो कर लेना। लेकिन अभी हम लोग की जिंदगी है ना, अभी हम लोगों की जिंदगी है, उम्र क्या है हम लोगों की अभी। तो अब ऐसे में हम कैसे वसीयत करते हैं, हम लोग को ये लग रहा है कि अभी बुढ़ापा आएगा, लगना भी चाहिए, हर आदमी जीना चाहता है, लेकिन पता चला कि फला जगह गया, अब कोई हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया, उसकी बॉडी आई, पता ही नहीं चला, घर से निकला लेकिन पता ही नहीं चला कि मौत कब उसके अपने आगोश में ले ले। मेरे यार ऐसे लोगों की सोहबत ना इख्तियार करें, ना तौर तरीका इख्तियार करें, सोहबत के साथ साथ उनके तौर तरीके को भी। अल्लाह रसूल ने कहा ना, मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, अगर कोई किसी कौम की मुशाबिहत इख्तियार करता है, उसके जैसा काम करता है, तो गोया उसी में से है, वो उसी से बिलोंग करने वाला हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से अपने आप को बचाए। अल्लाह इनके बारे में कह रहा है आगे आयत नंबर 53 में, अम लहू नसीबु मिनल मुल्की, क्या इनके लिए बादशाहत और सल्तनत का कोई हिस्सा है, इनके पास बादशाह कोई हिस्सा है, कोई हिस्सा नहीं। बादशाह कौन है, अल्लाह ताला है। ना ही इनके पास कोई सल्तनत है, ना ही कोई बादशाहत है। लेकिन अल्लाह इस्तिफहामिया क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, अम लहू नसीबु मिनल मुल्क, क्या इनके पास बादशाहत का कोई हिस्सा है। फइज़न ला युतून अन्नास नकीरा, अगर इनके पास कुछ भी हिस्सा होता, अल्लाह थोड़ा भी इनको इख्तियार देता, थोड़ा भी, तो ये क्या करते, ऐ नबी आपको खजूर के शगुफे के बराबर भी कुछ नहीं देते। हम लोग खजूर खा लेते तो ऊपर देखते ना चमड़ा उठता है ना, कितमिर जिसको कहा जाता है, नकीर भी कहा जाता है, जो उसके गुठली के ऊपर जो दाग रहता है तो नकीर कहा जाता है, या नकीरा का लफ्ज आया हुआ है। कितमिर कहते हैं कि जो छिलका टाइप का जो बीज होता है, बिच्चा जिसको बोलते हैं, उसमें होता है।
और नकीर कहते हैं जो खजूर के गुठली के ऊपर जो धब्बा टाइप का रहता है उसको बोलते हैं कि ये अगर जरा से भी मिल्कियत रखते तो ए नबी आपको वो भी नहीं देते, वो भी आपको नहीं देते कि चलो मोहम्मद को ये चीजें दे दी जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे अल्लाह कह रहा है आयत नंबर 54 के अंदर, अम यहसुदून अन्नास अला मा अताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, अल्लाह ने अपने फजल से जो कुछ भी आपको दे रखा है क्या इससे वो जलते हैं लोगों से? क्या ये लोगों से जलते हैं? अम यहसुदून अन्नास, अम या बल्कि माने बल्कि ये लोगों से हसद करते हैं। हसदा यहसुदू में क्या होता है? जलना। उर्दू में भी इस्तेमाल होता है हसद करना। हसद मतलब होता है जलन। क्या ये लोगों से जलते हैं? किस बात पर? इस बात पर, अल्लाह इस बात पर, मा अताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, कि अल्लाह ने अपने फजल से जो कुछ भी इनको दे रखा है। इनकी असल जलन क्या है कि ये अल्लाह के रसूल पर ईमान इसलिए नहीं लाए कि वो हमारी नस्ल से नहीं है। ये सबसे बड़ा मसला था। यहूद जानते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो दो औलाद हुई, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम और एक इसहाक अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल ईसा अलैहिस्सलाम तक चली, ईसा अलैहिस्सलाम तक चली। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिसको ज़बह करने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ले गए थे, उनकी नस्ल से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये नस्ली भेदभाव आज से नहीं चल रहा है, ये भी समझ लो। ये नस्ली भेदभाव आज से नहीं है, शुरू जमाने से चल रहा है। सिर्फ यही वजह है इनकी जलने की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाने की। क्यों? क्योंकि ये हमारी नस्ल से नहीं। अगर हमारी नस्ल से होते तो हम ईमान लाते थे। तो हमारी नस्ल से मूसा थे अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ईसा थे अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो वो हम ईसाईयत और यहूदियत को मानेंगे। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल अलैहिस्सलाम से थे तो हम नहीं मानेंगे। अल्लाह ने कहा अम यहसुदून अन्नासा, बल्कि ये लोगों से जलते हैं इस बात पर कि अल्लाह ताला ने उनको अपना फजल दे रखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए गए, तो किसने नबी बनाया? अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने आपको नबी और रसूल बना तो दुनिया के अंदर भेजा, वो तो खुद से नबी नहीं बन गए। तो जब अल्लाह ने बनाया तो अल्लाह कोई काम गलत कर सकता है? ये तो मुसलमान को सोचना होगा कि अल्लाह कोई भी काम गलत नहीं कर सकता, कोई भी काम गलत नहीं कर सकता। हमारा रब जो काम करता है अच्छा काम करता है। खर्चे हमें लगता है कि हमारे फेवर में, हमारे हक में वो गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, लेकिन असल में अल्लाह जानता है उसके फवाइद क्या है और उसके आगे चल के नताइज क्या है। अल्लाह ने कहा फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताब वल हिकमत, और हमने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल औलाद को किताब और हिकमत दी। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल चली, इसहाक अलैहिस्सलाम उनके बेटे थे, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम थे, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। एक लंबा चौड़ा नस्ल चली, कहाँ तक? ईसा अलैहिस्सलाम तक। तो अल्लाह कह रहा है कि हमने आले इब्राहिम को, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आल औलाद को किताब वल हिकमत, किताब और हिकमत अता फरमाई। वह आतैनाहु मुल्कन अज़ीमा, और उनको बहुत बड़ी बादशाहत अता की, बहुत बड़ी बादशाहत अता की। यहाँ पे एक नुक्ता याद रखें, बहुत से लोगों के सवाल लगता है कि सऊदी अरबिया के अंदर इलेक्शन क्यों नहीं होता? क्यों वहाँ बेटा बेटा बाद बाप, बाप के बाद बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, क्यों नहीं इलेक्शन इंडिपेंडेंट होता? जो काबिल है, जो लायक है बनता। हमारे मुल्क में तो इलेक्शन होता है, क्या ईमानदारी से होता है? इंडिपेंडेंट है इलेक्शन? अब सोचें, जब हम दूसरों को उंगली उठा रहे हैं, थोड़ी अपनी मुल्क की बात कर लें। क्या जो इलेक्शन हो रहा है बिल्कुल एकदम फेयर इलेक्शन हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं इसमें। जो बादशाह बैठ रहा है चुनाव में होने के बाद, वो बिल्कुल इंसाफ कर रहा है। अपनी मुल्क की बात करें ना, सबसे पहले अपना घर देखना चाहिए, बाद दूसरा घर देखें। हमारा घर ठीक है तो दूसरे की इस्लाह करें, हमारा घर बिगड़ा हुआ तो पहले उसकी इस्लाह करें, बाद में दूसरे घर में देखें। हमारे यहाँ इलेक्शन तो होता है, उसका रिजल्ट बताइए। आज मुसलमान क्यों पिछड़े हुए हैं? क्यों अकलियत में है? क्यों उनके साथ बिल्कुल दोहरा शहरी का रवैया इख्तियार किया जाता है? इसकी तो बात होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह कह रहा है कि हमने इब्राहिम सलाम को सल्तनत दी। इसका मतलब ये जुल्म हुआ कि आप इब्राहिम सलाम को बादशाह बना के क्यों भेज दिए? सुलेमान सलाम की हुकूमत थी, सल्तनत थी, अल्लाह ने उनको बादशाह बना दिया। क्यों बना दिया? क्या कोई जरूरी है कि नबी तो उसके पास सारी क्वांटिटी और क्वालिटी है, और जो नबी रहेगा उसके पास कुछ नहीं रहेगा? कोई जरूरी है? ये कहने का मतलब यह है कि ये चीजें अल्लाह ने शुरू से भी किया है। अगर आज हो रहा तो क्या दिक्कत है? अगर आज हो रहा तो क्या दिक्कत है? हमसे पहले मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ये बादशाहती हुकूमत चलती थी। 300 साल तक मुगल ने हुकूमत की, और न जाने कि कौन कौन सी कौमों ने आकर यहाँ पर हुकूमतें की। हुकूमत कोई भी करे, उसका असल बेस अदल इंसाफ होना चाहिए। बस ये बात याद रखें, चाहे इलेक्शन के जरिया हो और चाहे बादशाहत की हुकूमत हो, इंसाफ होना चाहिए। जो रियाया है उसके साथ नारवा सुलूक ना हो, बल्कि अदल इंसाफ हो। और अल्लाह ने इसी चीज के बारे में बयान किया कि अगर आदिल हुक्मरान होगा तो बहुत उसका सवाब है। हदीस के अंदर जालिम हुक्मरान है तो उसका भी बहुत फजीलत बयान की गई कुतुब अहादीस के अंदर। उसके बाद आयत नंबर 55
सूरह निसा आयत नंबर 55 अल्लाह ने कहा फमिनहुम मन आमन बिही, बस उनमें से बाद लोग क्या है, ईमान ले आए, तो मिनहुम मन सद्द अनहु, और उसमें से बाद रोक दिए। वकफा बिजहन्नम सईरा, और भड़कती हुई जहन्नम ही काफी है ऐसे लोगों का अजाब देने के लिए। सोचिए, जहन्नम के बारे में अल्लाह ने बयान किया। पीछे जो बातें अल्लाह ने बयान की अहले किताब के ताल्लुक से, कि ये लोगों से हसद करते हैं, ये लोगों से जलन करते हैं सिर्फ इस वजह से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जात से नहीं थे, हमारे नस्ल से नहीं थे। तो अल्लाह ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे नस्ल हसद की बात ही नहीं। आप अगर हजतुल विदा का खुतबा सुने, और पढ़ना चाहिए कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी हज किया, हजतुल विदा का खुतबा बहुत मशहूर खुतबा है, जिसमें करीब करीब लाखों सहाबा इकराम मौजूद थे, और आप अपनी ऊँटनी के कोहान पर बैठे हुए थे और सहाबा को खिताब किया। बहुत लंबा चौड़ा खुतबा था। उसमें यह भी एक खुतबा था कि इस्लाम में किसी अरबी को अजमी पर फौकियत नहीं। अगर कोई अरब में पैदा हुआ है, मक्का ही में पैदा हुआ है, वो ये ना समझ ले कि हम जन्नती हैं। और कोई हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, नाइजीरिया में पैदा हुआ है, या अफ्रीका में पैदा हुआ है, या तो बिल्कुल मक्का से दूसरे कोने में पैदा हुआ है, मुसलमान है, तो ये ना सोचे कि हम जन्नत में नहीं जाएंगे। इस्लाम में किसी अरबी को किसी अजमी पर फौकियत नहीं है। अगर इस लफ्ज पर आप गौर करेंगे, आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ना ही किसी गोरे को काले पर फौकियत है, ना ही किसी अमीर को गरीब पर फौकियत है, नहीं है। इस्लाम अदल, मसावात और बराबरी पर यकीन रखता है। मुसलमान दुनिया के किसी गोशे के हो, हम लोग अरबी नहीं है, अजमी है। अजमी कहते हैं अरब के अलावा जितने मुसलमान हैं, अरब के अलावा जितने लोग हैं जिनकी जुबान अरबी नहीं है, जो अरब की सरजमीन पर पैदा नहीं हुए हैं, उनको अजमी कहा जाता है। अब ये बात कहे कौन रहा है, ये भी समझ ले। इसकी लॉजिक को समझे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से कैसे सबक हासिल किया जाए। हजतुल विदा के मौके पे आपने कह दिया कि ये कोई ना सोचे, कोई मुसलमान, हालांकि वह सब अरबी थे, जितने सहाबा इकराम थे वो तो मक्का और उसके अतराफ के थे, जो आज गल्फ कंट्रीज माना जाता है, खलीज ममालिक, वहीं के सब लोग थे। उसके बाद जब इस्लाम फैला और केरल के साहिल समंदर से हिंदुस्तान में भी इस्लाम आया, और दीगर अफ्रीका में, यूरोप के अंदर भी इस्लाम गया, कुस्तुनतुनिया वगैरह, आपको मैड्रिड वगैरह में गया, है ना, जहां भी इस्लाम गया, तो हम लोग अजमी कहलाए, क्योंकि हम लोग की जुबान अरबी नहीं है। और ये चीजें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले कह दिया हजतुल विदा के मौके पर अपनी जुबानी, कि सहाबा ये ना समझ ले कि हम अरब की सरजमीन पर पैदा हुए हैं तो हम फला से बेहतर है, हिंदुस्तानी मुसलमान से बेहतर नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस्लाम ने किसी भी अरबी को अजमी पर फौकियत नहीं दिया है। कोई अमीर ही ना समझ ले कि अच्छे मुसलमान है, गरीब जो घटिया मुसलमान है। ना ही किसी अमीर को किसी गरीब पर फौकियत दिया है, ना ही किसी गोरे को काले पर फौकियत दिया गया। कोई गोरा है, खूबसूरत है, हम लोग माशाल्लाह खूबसूरत है, और जो अफ्रीका में जो हमारे भाई पैदा होते हैं वो वहां की सरजमीन, वहां मिट्टी की वजह से काले पैदा होते हैं। लेकिन अगर वो मुसलमान है, नमाजें पढ़ते, रोजा रखते, शरीयत पे चलते हैं, तो ये ना सोचे कि हम ही जन्नत में जाएंगे, हम गोरे हैं, और वो काले हैं तो जन्नत में नहीं जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से अल्लाह के नजदीक सबसे मुअज्जज हुआ है जिसके अंदर तकवा है। क्या इस्लाम की खूबसूरती है। यही सब तो पढ़ के लोग मुसलमान हो जाते हैं। और आज देखे मौजूदा दौर में अभी जो मेला चल रहा है इलाहाबाद में, क्या बोलते हैं, कुंभ का मेला, जो मेला चल रहा है, आज वही लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर वीआईपी प्रोटोकॉल है और हम लोग आम है, लोग खास है। और उन्हीं लोगों की जुबानी सुनिए कि लोग कह रहे कि जाकर मस्जिदों में देखो, मस्जिद में अमीर गरीब कुछ नहीं मिलता, जिसको जहां जगह मिली वहां नमाज पढ़े। कोई खाना डिपार्टमेंट बनाया ही नहीं गया है कि जो वीवीआईपी होंगे वो इस गेट से घुसते हुए यहां चले आएंगे, और जो कम मिडिल क्लास वाले होंगे उनके लिए ये सब होगी, और जो एकदम फटीचर गरीब जिसको कहा जाता है गरीबों को, वो एकदम सेहन में नमाज पढ़ेंगे, वो अंदर भी नहीं घुस सकते। ये हमारे इस्लाम की खूबसूरती है कि अल्लाह अपने इस्लाम को गालिब करना चाहे तो गैर मुस्लिमों से काम ले लेगा। आगे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे वीआईपी प्रोटोकॉल है, सारे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, उनको बड़ी आसानी से काम हो जा रहा है, हम लोग धक्का मुक्का खा रहे हैं। तो आप उनकी मस्जिदों में जाकर देखिए, मुसलमानों की मस्जिदों में ना कोई साइन बोर्ड मिलेगा कि करोड़पति होगा या अरबपति होगा तो वहां बैठेगा, उसके इमाम के करीब बैठेगा या यहाँ बैठेगा। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अय्याज, ना कोई बंदा ना कोई बंदा नमाज। सोच ले, ये इस्लाम की खूबसूरती है कि अल्लाह ताला ने इतना बेहतरीन दिन हमें और आपको दिया है कि हम सब की अपनी अहमियत अल्लाह के नजदीक। अल्लाह के नजदीक कौन अच्छा होगा, पैसा वाला कोई जरूरी नहीं, गरीब कोई जरूरी नहीं, तकवा
असल चीज फैक्ट करती है तकवा। आप गरीब है लेकिन आपके अंदर डर है अल्लाह ताला का। आप ना जिना करते, ना चोरी करते, ना सूद खाते, ना झूठ बोलते, ना गीबत करते, ना चुगली करते, ना बुराई करते, ना मासियत करते हैं, तो आप अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर हैं। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु काले थे, ब्लैक थे, हबशा के रहने वाले हबशी थे, काले थे, सहाबा का दर्जा है, रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब है कि अल्लाह उनसे राजी और अल्लाह से राजी। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि इस्लाम के अंदर जो जात पात और नस्ल की जो बात यहूद नसारा ने की है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के नस्ल से अल्लाह के रसूल थे इसीलिए ईमान नहीं लाए, वो इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से क्यों ना हुए। और देखिए बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी चीजें हम लोगों के अंदर आ गई और हमको लगता है कि यहूद नसारा ही से लोग ले रहे हैं। अब जैसे रिश्ता होने वाला है तो आपका कास्ट क्या है, अब एक खान बिरादरी एक अंसारी बिरादरी शादी में, क्यों ये खान है ये अंसारी है, इस्लाम काफी नहीं है। खान की लड़की भी मुसलमान है, अंसारी की लड़की भी मुसलमान है ना। खान का लड़का भी मुसलमान है, कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ है, अंसारी का लड़का भी मुसलमान है, लेकिन इस्लाम हमको नहीं चाहिए, हमको बिरादरी चाहिए। इस्लाम से ज्यादा बिरादरी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अगर गलत है तो बताइए कहाँ गलत है। रिश्ता नहीं हो रहा है, नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये आला क्वालिटी के जाहिल है। आला क्वालिटी के जाहिल यानी जो इस्लाम पर इत्मीनान ना जाहिर करे तो कौन हो सकता है। एक मुसलमान को अल्लाह ताला ने कबाइल में तकसीम इसलिए किया ताकि हमारी पहचान हो जाए, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक भीड़ है, 50-60 लोगों की भीड़ है। अब उसमें एक अनाउंसमेंट ये होता है कि अकरम नाम का जो आदमी है वो अपने यहाँ चले, उनका एक भाई खोज रहा है। अब वहां पे 50 अकरम है, 10 में से 8 अकरम है, तो कौन अकरम को बुलाया जा रहा है, कौन समझेगा अपने आप को। वहां तो 8 लोग है अकरम, 50 में 8 लोग अकरम है। अकरम का अनाउंसमेंट हो रहा है कि आप फला काउंटर पे जाए, आपके घर वाले खड़े हैं, तो कौन अकरम समझेगा कि हमें कहा जा रहा है। तो अल्लाह ने पहचान बताई, बाप का नाम बताइए, ये पहचान है। अब बाप का नाम भी सेम हो गया तो ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बताइए कहां से है, कहीं ना कहीं तो फर्क हो जाएगा, सेम नहीं होगा। तो अल्लाह ने कबीलों में तकसीम किया ताकि पहचान आइडेंटिफाई की। एयरपोर्ट पे ऐलान हो रहा है कि फला अकरम है, यहाँ पे चले जाए, काउंटर पे चले जाए। अब एक अकरम दुबई से, एक अकरम पाकिस्तान से, एक अकरम हिंदुस्तान से, एक बांग्लादेश से, एक यूएई से, एक अरब इमारत से और एक इंग्लैंड से है, कौन अकरम जाएगा। तो उसको बताया जाएगा कि फला पासपोर्ट वाला, पहचान हो गई, क्लियर हो गया, फला हो गया। तो अल्लाह ने अगर कबाइल में तकसीम किया तो पहचान किया और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि फला कबीला बहुत बड़ा है, उसके मकामात बहुत ऊंचे है, अब फला कबीला बहुत छोटा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक हदीस नहीं मिलती कि मैं फला कबीले से हूं इसलिए मैं मुअज़्ज़ज़ हूं, नहीं, ऐसा आपने नहीं कहा कि मैं फला कबीले से हूं। आप बनी हाशिम खानदान से थे, आपका खानदान बहुत बड़ा था, बड़ा मुअज़्ज़ज़ था, ये मुअज़्ज़ज़ बात है, अच्छी बात है। लेकिन जो और कबीले से लोग मुसलमान हुए सहाबा, ऐसा नहीं को घटिया थे, क्योंकि समझ बात है। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुसलमानों के पास इल्म होने के बावजूद ये गलतियां हम कर रहे हैं कि हम बिरादरी को फौकियत दे रहे हैं इस्लाम के ऊपर। सोच ले, ये मजाक नहीं है। नहीं, हमको इस्लाम नहीं चाहिए, हमको बिरादरी चाहिए। कहां चले गए हम लोग इस पढ़े लिखे जमाने में, दौर में, जहां साइंस और टेक्नोलॉजी अपने चरम पर है, बहुत ऊपर जा चुकी है, और उसमें भी हम जहलत वाले काम कर रहे हैं। और अफसोस होता है कि पढ़े लिखे लोग करते हैं, पढ़े लिखे लोग करते हैं। क्यों, इस्लाम काफी नहीं है। एक मुसलमान फलस्तीन के अंदर मर गया था, क्या हमने उसकी बिरादरी पूछकर अफसोस किया। ठीक है, मुसलमान था लेकिन किस बिरादरी था, अंसारी था, हाँ तब बहुत अफसोस की बात है। खान था, अच्छा बना गया, ऐसा है क्या, ऐसा करते हैं हम, पूछते हैं कि कौन सी बिरादरी का था, किस जात का था, उसके खानदान क्या थी, उसकी नस्ल क्या थी। नहीं, वो ईमान वाला था, तकलीफ होती थी, वो ईमान वाला था, हमारा भाई था, अल्लाह को मानने वाला था। और देखिए यहूद नसारा ने यही गलतियां की, फिर इसी बुनियाद पर उन लोगों ने हसद किया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और कहा अल्लाह ने कि ये अगर जरा सी भी मिल्कियत इनके पास होती तो क्या करते, ये खजूर के गुठली के शगाब के बराबर कोई सामान ना देते कि नहीं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देंगे, क्यों, वो हमारी नस्ल से नहीं थे। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, है ना। बहुत से ऐसे भाई हैं, सहाबा को देखिए, आप लोग कुफ्र और शिर्क से निकल कर मुसलमान हुए, है ना। आज ही के जमाने में हम लोग जो बिरादरी लड़ रहे हैं, बहुत सारे हमारे भाई गैर मुस्लिम पे मुसलमान हो गए, तो उससे कौन शादी करेंगे। अगर बिरादरी को हमने बढ़ा दिया तो बहुत से गैर मुस्लिम भाई है ना, मुसलमान हो रहे कि नहीं हो रहे, ईमान ला रहे हैं, अब वो शादी कैसे करेंगे, उनका तो कोई बिरादरी नहीं, वो तो गैर मुस्लिम थे। कोई फला गैर मुस्लिमों में भी कई जात धर्म होते, उससे निकल कर आए, तो अब मुसलमानों को चीज कहां मिलेगी। तो मेरे भाई बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये चीजें खत्म करें, अल्लाह से डरे, इसको मामूली ना समझेगा, नहीं तो छोटा मोटा मसला है, इतना देख देख लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं।
ऐसा कुछ नहीं, ईमान सबसे बड़ी चीज है कि ईमान होना चाहिए। अब उन्हीं के बारे में कहा कि ये जो अहले किताब की तस्करा चल रहा है, आयत नंबर 55 में 55 में अल्लाह ने कहा फमिनहुम मन आमन बिही। अब ये लोग क्या है, एक तो ये हैरत का काम, ताजुब और हैरत पे पड़े हुए हैं कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नस्ल से नहीं तो ईमान नहीं लाएंगे, लेकिन इसी में से कुछ लोग ईमान लाए। जैसे अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये यहूदियों के बहुत बड़े पादरी थे, आलिम जो कहा जाता है, यहूदियों के बहुत बड़े आलिम अल्लाह ने हिदायत दिया, उसी में से निकल कर मुसलमान हो गए। वमिनहुम मन सद्दा अन्हु, बहुत से लोगों को रोक दिया गया कि नहीं आपको ईमान नहीं लाना है, नहीं लाए लोग ईमान। कफा बिजहन्नम सईरा, जलाने के एतबार से, अजाब के एतबार से, भड़काने के एतबार से जहन्नम का जानी काफी। ये बात अल्लाह ने यहाँ पे बयान की। आगे अल्लाह ने कहा इन्नल लज़ीना कफरू, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, ठीक चले ना हम लोग, 56 इन्नल लज़ीना कफरू, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, बि आयातिना सौफ नुस्लिहिम नारन, तो हम उन्हें अनकरीब क्या है जहन्नम के अजाब का मजा चखाएंगे। अनकरीब कुफ्र की वजह से जिन लोगों ने कुफ्र किया, कुल्लमा नज़िदा जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा, और जब जब उनके चमड़े जल जाएंगे तो हम दूसरा चमड़ा बदल देंगे, उनके चमड़े रिप्लेस कर देंगे, जलते रहना है। जब जब चमड़ा जल गया, खत्म हो गया, अब गोश्त है, अब वो तो दहकता हुआ आग है, वो तो गोश्त को भी जला देगा। फौरन अल्लाह कह रहा है कि हम नज़िदा जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन, तो हम क्या करेंगे उसका चमड़ा बदल देंगे। जिल्द उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, जिल्द चमड़ा, उसी की जमा है जुलूद, उसी का ये जमा है जुलूद, उर्दू में कहते हैं जिल्द चमड़े को। अल्लाह क्या कह रहा है, कुल्लमा नज़िदत जुलूदुहुम, जब जब उनके चमड़े जल जाएंगे, बदलनाहुम जुलूदन गैरहा, तो हम गए मतलब इसके अलावा यानी दूसरा चमड़ा फिर हम बदल देंगे, लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वो अजाब का मजा चखे। जायका उर्दू में इस्तेमाल होता है, उसी से लियज़ूकुल अज़ाब, और अजाब भी उर्दू में इस्तेमाल होता है ताकि वो अजाब का मजा चखे। इन्नल्लाह काना अज़ीज़न हकीमा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला गालिब और हिकमत वाला है। ये किन के बारे में बयान हुआ, जो कुफ्र करे। यहाँ पे एक बात याद रखिए कि हम सिर्फ इससे मुराद काफिर ना लें, है ना, कि नहीं जो कुफ्र क्या है वो, अच्छा हम मुसलमान है नमाज़ें ना पढ़े, हम मुसलमान है सुन्नत पर अमल ना करें, हम मुसलमान है झूठी झूठ बोले, हम मुसलमान है सूद खाए, हम मुसलमान है हराम काम में मुलविस हो जाए, तो क्या ये चीज हमारे लिए इनकार, मतलब ये होता है कफरा यकफुर में होता है इनकार करना, इनकार करना है ना, इनकार करना। तो इसमें काफिर भी आ गए, अल्लाह का इनकार करते हैं, और वो मुसलमान भी आ गए जो बज़ाहिर जुबान से तो ईमान लाए हुए हैं लेकिन अमल से ईमान नहीं लाए हुए हैं, वो भी इसमें आके वो भी इनकार कर रहे हैं। अब अल्लाह कह रहा है कि सूद मत खाओ, सूद खा रहे थे, इकरार हुआ कि इनकार था। इसीलिए मुफस्सिरीन इस पर गौर करा देते हैं, क्योंकि बहुत से मुसलमान इसको नेगेटिव लेते हैं। नहीं, काफिरों के बारे में हम तो मोमिन हैं, काफिर के लफ्जी माना क्या है, इनकार करने वाला। अगर वो अल्लाह का इनकार कर रहा है तो हम अल्लाह के फरमान का इनकार कर रहे हैं, अगर अल्लाह के रसूल का इनकार कर रहा है तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत का इनकार कर रहे हैं, दोनों इनकारी हैं, दोनों इनकारी हैं। तो ये अल्लाह ने दर्दनाक अजाब के बारे में बयान किया। उसके बाद अल्लाह ने आयत नंबर 57 में कहा वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात की बात आ गई, जो मैंने अभी कहा आपसे। मैंने कहा ना कि मुसलमान ये ना सोचे कि हम मुसलमान हैं तो हमको ये अजाब नहीं मिलेगा और हम बाकी कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह क्या कर रहा है, वल्लज़ीना आमनू, और जो लोग ईमान लाए वो अमिलुस सालिहात, नेक अमल किए। सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं है, ईमान के साथ अल्लाह ने नेक अमल को जोड़ दिया। अगर ईमान लाना ही काफी हो जाता तो अल्लाह कभी नहीं कहता वो अमिलुस सालिहात, अल्लाह यहाँ से हटा देता। सिर्फ इतना करता वल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले हैं, सनुदखिलहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अनहार, तो हम उनको ऐसे जन्नत में बागात में दाखिल करेंगे जिसके नीचे नहरें जारी होंगी, खालिदीन फीहा अबदन, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। लॉजिक समझ में गया क्या बोलने का मतलब है। अगर सिर्फ ईमान लाना काफी होता जन्नत में जाने के लिए तो अल्लाह ऊपर भी कहता कि इन्नल लज़ीना कफरू, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, वलम यामल, और अमल नहीं किया, अल्लाह क्लियर कर देता। लेकिन कुफ्र मतलब इनकार में सारे लोग आ गए, काफिर भी अल्लाह का इनकार कर रहा है, मुसलमान भी ईमान लाने के बाद अल्लाह के तरीके को इनकार कर रहा है, सब जहन्नम में जाएंगे। अब अल्लाह कह रहा है वल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, वो अमिलुस सालिहात, और नेक अमल करें। ईमान के साथ अल्लाह ने नेक अमल को जोड़ दिया है। सिर्फ ईमान लाकर हम खुश ना हो जाए कि हम मुसलमान घराने में पैदा हो गए, मुसलमान हो गए। अब जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है वो कभी माने कभी ना माने, कभी छोड़ दे कभी पकड़ ले, ये तरीका इस्लाम का नहीं है, ये तरीका इस्लाम का कभी भी नहीं रहा है ना। अल्लाह कह रहा है कि अगर ईमान और नेक अमल होगा, सनुदखिलहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अनहार, तो उनको ऐसी बागात में, ऐसे बागीचे में, जन्नत की बात हो रही, रखेंगे, दाखिल करेंगे, तजरी मिन तहतिहा अनहार, जिसके नीचे से
नहरें जारी होंगी। और तहत जो है उर्दू में इस्तेमाल होता है, आप उसके मातहत यानी उसके अंडर में, है ना। तहतिहल अनहार, उसके नीचे नहरें जारी होंगी। नहर भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, जो पानी बहता है नहर, उसकी जमाती अनहार, उसके नीचे नहरें जारी होंगी। खालिदीन फीहा अबदन, उसमें हमेशा हमेश रहेंगे। ईमान लाने वाले, नेक अमल करने वाले उसमें हमेशा हमेश रहेंगे। लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहरतुन, अल्लाह कह रहा है आगे कुरान में कि ऐसे जन्नतियों के लिए नेक और पाकीज़ा बीवियां होंगी। नेक और पाकीज़ा बीवियां होंगी। पाकीज़ा इसलिए कहा जाता है कि दुनिया के अंदर जो औरतें होती हैं उनको हैज और निफास की जरूरत पड़ती है, मंथली पीरियड जिसको कहते हैं। लेकिन जन्नत के अंदर जो बीवी मिलेगी उसको ये सब चीजें पाप होगी, कोई सब कुछ नहीं होगा, ये सब खत्म रहेगा। अल्लाह कह रहा है अज़वाजुम मुतहरतुन, ऐसे जन्नतियों के लिए नेक बीवियां होंगी। वनुदखिलहुम, और हम उनको दाखिल करेंगे ज़िल्लन ज़लीला, ऐसे सायेदार पायदार दरख्त के नीचे जहां सिर्फ साया ही साया होगा, छाव होगा। छाव की अहमियत कब समझ में आती है? जब चिलचिलाती धूप हो और हम कहीं बाहर निकले हों और किसी दरख्त के साए में खड़े हो जाए, कितना रिलैक्स होते हैं हम लोग, कितना अच्छा लगता है कि माइनस टेम्परेचर है 45 50 और उसमें हमको दरख्त का साया मिल गया, कितना अच्छा लगता है। अल्लाह ताला उस दिन जन्नत में साया देगा, साया देगा अल्लाह ताला, और ऐसा साया जिसमें कौन रहेंगे? जन्नती रहेंगे। यहाँ तक दर्स मुकम्मल हुआ। इसमें अगर कोई सवाल है तो ऑनलाइन या ऑफलाइन आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। मॉम सब नस्ल में प्रॉब्लम उन लोग को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था, तो ईसा अलैहिस्सलाम को फिर क्यों नहीं मानते हैं? कौन लोग? यहूदी। एक सवाल ये है कि नस्ली तौर क्या पर, सोचते थे? नस्ली तौर पर जैसे वो नस्ल के एतबार से इनकार कर देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नस्ल से नहीं है, हम इसलिए नहीं मानेंगे। और भी इनकार की बहुत सारी वजूहात थी, ऐसी बात एक बेसिक वजह थी, बुनियादी वजह। तो फिर सवाल ये कि ईसा अलैहिस्सलाम को क्यों इन लोगों ने इनकार के इकरार क्यों नहीं किया, है ना? वो तो उन्हीं के नस्ल से थे। देखिए अल्लाह ताला ने हर दौर में बोला कद बअस्ना फी कुल्ली उम्मतिन, कौन आ रहा है? तुम इसका ये क्या नहीं किया? फ्लाइट मोड क्यों नहीं डाला? अब जाएगा सवाल रिपीट कर। रिपीट कर दो। सवाल ये है कि अगर नस्ली तौर पर उनको एतराज था तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम तो उन्हीं के नस्ल से थे, तो यहूदी ने उनको क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, क्यों नहीं उनको माना, है ना? देखिए सबसे बड़ी बात देखिए, अल्लाह ने कुरान में कहा वलक़द बअस्ना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल बनाकर भेजा। वो रसूल कहता था अन इब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत तागूत, अभी तागूत के बारे में गुजरा, माबूदाने बातिला, चाहे इंसान खुदाई का दावा करते चाहे बुत जो है, ये सब माबूदाने बातिला को तागूत कहते हैं, तागूत का इनकार करें। अब देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के लिए कहा गया था, ना कि उनकी इबादत करने के लिए। असल पॉइंट याद रखिए, बनी इसराइल से ये नहीं कहा गया था कि मूसा अलैहिस्सलाम की इबादत करो, बल्कि उस पर ईमान ला, और एक आसमानी किताब भी नाजिल किया गया कि आप इन पर ईमान लाए, है ना? लेकिन इन लोगों ने ईमान लाने के बजाय उनको खुदा का दर्जा दे दिया, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। सिवाय चंद के सारे लोग जो है, कलील तादाद मुसलमान हुई, अक्सरियत गुमराह हो गई। अब उनके पास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी अल्लाह ने उनके उम्मतियों से यही कहा कि आप हज़रत ईसा पर ईमान लाए, ना कि उनकी इबादत करें, ना कि इसमें ताबीर करें कि अल्लाह के बेटे हैं या ये है या वो है, जो भी वगैरह वगैरह। तो सवाल ये कि दोनों एक ही नस्ल है, नस्ल तो दोनों एक ही है, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से। तो ये आपस में ही इनका खुद नहीं बनता है, ये इसलिए ही ईमान नहीं लाए। अब इससे पहले दर्स में बात गुजर चुकी है कि जो तहवील किबला की जो आयत गुजरी थी, अल्लाह के रसूल की ख्वाहिश थी कि मुसलमान खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़े, है ना? तो अल्लाह ने अल्लाह के रसूल की ख्वाहिश के मुताबिक किबला को तहवील कर दिया, यानी चेंज कर दिया। अब रहती दुनिया तक, क़यामत तक हम लोग किबला क्या रहेगा? खाने काबा रहेगा। पहले बैतुल मुकद्दस था, इसको किबला अव्वल कहा जाता है। अब उसी बहस में आयत में ये बात आई है कि जब तहवील किबला हुआ तो यहूद ने मजाक उड़ाया, कैसा नबी है, कभी कहता है बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो, कभी कहता है खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो, कल बोलेगा मदीना की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो, फिर बोलेगा ताइफ की तरफ, फिर दिल्ली की तरफ, फिर बॉम्बे की तरफ, है ना? मजाक उड़ाया। तो अल्लाह ने एक आयत वहां पे बयान की, ये खुद आपस में एक नहीं है। बैतुल मुकद्दस का मशरकी हिस्सा ये दावा करते हैं यहूद कि हमारा किबला है, और बैतुल मुकद्दस का जो जुनूब का हिस्सा है ये दावा करते हैं ईसाइयत कि ये हमारा किबला है। तो अल्लाह ने कहा कि तो खुद आपस में एक नहीं। बात समझ आ रही है ना? इनकी बेसिक लड़ाई इसी पर है। आपका जो सवाल है कि क्यों ये लोग ईसा पे क्यों नहीं मान रहा, जब एक ही नस्ल की बात की, तो बात नस्ल की तो थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से,
यहाँ पर बात आ गई किबला के बारे में, यहाँ पे किबला की बात आ गई। यहाँ पे ये लोग नबी चेंज हो गए, किताब चेंज हो गई, आसमानी किताब, तो इनको तो ईमान लाने के लिए कहा गए हैं, तो बात खुदाई की चलने लगी, ये लोग तो खुदा मान के चल रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब खुदा ही मान ली है, तो कह रहे हैं कि बैतुल मुकद्दस का मशरिक हिस्सा मेरा है, ये कहते हैं कि बैतुल मुकद्दस का जुनूबी हिस्सा मेरा है। ये तो खुद ही आपस में इख्तलाफ कर बैठे, अगर ये मसला नहीं होता तो नहीं करते। और दूसरी बात कि शरीयत सिलसिलेवार तरीके से एक नबी के बाद दूसरी नबी आई तो वो शरीयत मनसूख हो गई, फिर इनकी शरीयत चलने लगी, फिर इनके बाद जो आए इनकी मनसूख हो गई और उनकी चलने लगी। तो इनकार और इकरार तो हर दौर में हुआ है, यहाँ पे बात समझा रही है ना। तो ये अपने किबले में एक नहीं, और बहुत से मसाइल है यहूद नसारा अपने किबले में एक नहीं है। यही वजह है कि ये लोग जो है यहूद जो है बाद में ईसा अलैहिस्सलाम को एक्सेप्ट नहीं किए। किबला की बात आ गई, बोले ठीक है आप हमारे किबले पे आ जाइए तो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। वो कैसे आ जाए, उनको अपना जिद पकड़े हुए हैं कि नहीं हमारा किबला ये है, ये असल वजह, और कोई बात नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये तो मामला था, नस्ल के इब्राहिम सलाम की दुआ थी कि अल्लाह हमारी नस्ल से थी ना दुआ, उस दुआ का रिजल्ट थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सब काम में मुशाबिहत की बात आती है, तो बहुत सारी चीज़ें तो आज हम लोग करते हैं जो यहूद नसारा की है, तो उस मामले में क्या है? देखिए सवाल ये है कि जो हदीस हुई मन तशब्बा बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो अगर जो किसी कौम की मुशाबिहत इख्तियार करेगा वो उसी में से है। तो हम लोग तो बहुत सारी चीजें करते हैं उस कौम की मुशाबिहत। सबसे पहले बात देखिए, इसमें एक बहुत माइनर एक राज जो है उसको पहले जान ले, जाहिर समझ ले, जो छुपा हुआ है। हम लोग हर चीज को मुशाबिहत में कहते हैं, यानी कोई भी चीज हम लोग कहते हैं कि ये तो यहूदियों की जान है। अगर कोई कोट और टाई और कोट पैंट पहन ले तो कहते हैं कि यहूदी ने बनाया है, जबकि उसकी असल हिस्ट्री तारीख हम नहीं जानते। हम इसलिए बोलते हैं कि वो लोग ज्यादा पहनते हैं, है ना। हर मुल्क के हर कौम की अपनी एक रिवायती लिबास होता है जिसको लोग पहनते हैं। भूटानियों के पास जाएंगे तो उनके अपने एक लिबास है, हाँ, नेपालियों की अपनी एक अलग लिबास है, हिंदुस्तानियों के अलग लिबास है। सवाल ये कि मुशाबियत किन चीजों में, ये बहुत बड़ी चीज है, किन चीजों में मुशाबियत के बाद अकायद में मुशाबियत रखा जाए, आमाल सालिया में मुशाबियत पाई जाए, है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए, आशूरा का दिन था, मुहर्रम की 10 तारीख थी, आपने देखा कि रोजा रख रहे हैं ना। तो अल्लाह के नबी साहबा से पूछा, पूछो तो क्यों रोजा रख रहे हैं ये लोग। पूछा गया भाई क्यों रोजा रख रहे हो। उन्होंने कहा कि आज के दिन अल्लाह ताला ने फिरौन से मूसा अलैहिस्सलाम को निजात दिया था, इस खुशी में हम रोजा रख रहे हैं। अल्लाह रसूल ने कहा इसकी मुखालफत करो, तुम लोग रोजा रखो, हम ज्यादा हकदार हैं क्योंकि मूसा हमारे नबी थे, ये तो खुदा मानते हैं उसको, मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं। हम ज्यादा हकदार हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को जो निजात मिली उसका रोजा रखे, लेकिन रोजा रखो लेकिन मुखालफत करो। कहा कि नहीं, मुशाबिहत नहीं होनी चाहिए। किसमें, अकायद की बात थी, ये इबादत का मामला था। रोजा क्या इबादत है ना, तो ये रोजा किसे रख रहे हैं, निजात में, ताकि मूसा खुश हो जाए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि हम ज्यादा हकदार हैं, तुम रोजा रखना, अगले साल मैं भी एक जिंदा रहा तो रोजा रखूंगा इंशाल्लाह। और मुखालफत करना, मुखालफत मतलब ये एक रखे तुम दो रख लो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर मूसा भी जिंदा होते तो मेरे दीन की पैरवी करते। अगर आज मूसा भी जिंदा होते मेरे दौर में तो वो अपने दिन पर नहीं, जो उनको दिया गया था, जो अपनी किताब पर नहीं, जो तौरात उनको दिया गया था, वो मेरे शरीयत की पाबंदी करते, मैं उनकी शरीयत की पाबंदी नहीं करता। तो मुशाबिहत किसमें, इबादत में, अकायद में, उनके चाल चलन में। क्योंकि देखिए शरीयत के अंदर हम लोग रहने सहने खाने पीने की हर चीज बयान हो चुकी है, कोई चीज बचा नहीं है। अगर आप लिबास पर बहस करेंगे तो अल्लाह ने लिबास के बारे में बयान कर दिया, औरतों और मर्दों के लिबास के लिए। खाने पीने पर आए तो कौन सी चीज हलाल कौन सी हराम सब बयान हो चुका है। तो ये चीजें इसके एगेंस्ट में यहूद है, उस चीज को नहीं करना है। अब जैसे बैठ के खाने का हुक्म है, आजकल चेयर कुर्सी आ गया, और उस पर आपके दिल में एक सवाल हो, जो माइनर चीज जो शक रहता है कि कुर्सी तो लोग बनाई हुई है, ये तो मुशाबिहत हो गई। नहीं, इसको मुशाबिहत नहीं कहते। क्या अल्लाह के रसूल के जमाने में लोग पत्थरों पर नहीं बैठते थे, नहीं बैठते थे, ऊँटों पर नहीं बैठ कर खाते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे, बैठकर ऊंचा जगह पर नहीं बैठते थे। आज डेवलप हो गया, डिजिटल लाइफ में हम जी रहे हैं, तो ये सब कोई मुशाबिहत नहीं है, ये तो कोई मुशाबिहत नहीं। दीनी मामला में, अकीदे में, इबादत में उनकी तरह हम ना बने। अब जैसे जो इस तरह बाल कटवा रहे हैं, उस तरह बाल कटवा रहे हैं, तो क्या बाल रखने का तरीका अल्लाह रसूल ने नहीं बताया, देख ले पहले। अब तरीका देख के उनको देख ले, जाओ तो मुखालफत में है, एकदम बिल्कुल अगेंस्ट में, उनके सपोर्ट नहीं करना है, मुशाबिहत उनकी तरह नहीं करना है। ठीक, तुम्हारे साथ एक सवाल है कि जैसे कि एक मुसलमान तो होता है कि उसका एक मतलब कि अपना इच्छा को अल्लाह की तरफ मंसूब कर देता है, लेकिन एक इंसान है जो कि नमाज भी पढ़ रहा है, रोजा भी रखता है, हर चीज करता है, लेकिन वो सूद खाता है। लेकिन सूरह बकरा में है कि अगर तुम सूद खाओगे तो फिर अल्लाह उसके रसूल से जंग करोगे, तो फिर वो मुसलमान रहता है या नहीं रहता है? देखिए सवाल ये कि एक मुसलमान है
जो अपने मामलात को अल्लाह के दर पेश कर देता है, अल्लाह के दर पे रख देता है कि मेरे ये मामलात है, जो भी परेशानी है, खुशी जो भी है। और एक मुसलमान ये है कि वो नमाज भी पढ़ता है, रोज़ा भी रखता है, और लेकिन सूद यानी कोई भी हराम काम करता है, जिना भी एक हराम काम है, सूद हो, जिना हो, जो भी हो, वो भी करता है। तो ऐसी सूरत में क्या मुसलमान रहेगा कि नहीं रहेगा, यानी वो काफिर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना। एक बात देखिए, याद रखें कि कुफ्र का फतवा बड़ा मुश्किल तरीन चीज है। जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो मुसलमान है ना। जिसने भी कहा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वो मुसलमान है। अब रहा गया सवाल कि इस्लाम लाने के बाद उससे जो गुनाह सरजद हो रहा है, एक तो वो कुफ्र की हालत में जो गुनाह किया इस्लाम की वजह से वो सब मिट गया। मुसलमान होने के बाद अगर वो गुनाह कर रहा है, चाहे वो जिना करे, चोरी करे, डाका डाले, झूठ बोले, गिबत करे, चुगली करे, सूद खाए, तो ये तो गुनाह है। और गुनाह भी दो किस्म के होते हैं, एक कबीरा, एक सगीरा। सगीरा गुनाह खैर सदकात, खैरात और वजू बनाने वगैरह से झड़ जाते हैं। कबीरा गुनाह जब तक वो माफी नहीं मांगेगा, यानी तौबा नहीं करेगा, अल्लाह ताला उसको माफ नहीं करेगा। जैसे सूद खाना कबीरा गुनाह है, वालिदैन की नाफरमानी कबीरा गुनाह है ना, जिना कबीरा गुनाह है। तो ये गुनाह की सूरत अल्लाह के ने क्या बयान किया? अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि सूद खाना अल्लाह और उसके रसूल से जंग लड़ने के मुतरादिफ बराबर है। ये नौइयत बताया गया है, नौइयत बताया गया है कि सूद का सबसे अदना दर्जा अपनी माँ के साथ जिना करना है। कौन बेटा होगा जो अपनी माँ के साथ हम बिस्तरी करेगा? सोचे, सुनकर ही अजीब लग रहा है ना, लग रहा है ना। तो ये तो गुनहगार होगा। और याद रखिए कि जो चीज हराम काम हम कर रहे हैं, तौबा किए बगैर हम मर गए तो हमें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। लेकिन काफिर नहीं बोल सकते उसको। एक काफिर वो होता है जो सिरे से अल्लाह का इनकार करता है, एक काफिर वो होता है जो अल्लाह का इकरार किया लेकिन उसकी आयतों का इनकार करता है, उसके अहकामात का इनकार करने वाला, काफिर मतलब इनकार करने वाला। आप जो काफिर बोलना चाहते हैं मतलब कि वो गैर मुस्लिम, तो उसको गैर मुस्लिम नहीं बोल सकते। जैसे मिसाल के तौर पर जिना क्या है? हराम चीज है, कबीरा गुनाह है। एक सहाबी अल्लाह के रसूल की खिदमत में आए, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा किस चीज से पाक कर दे? नहीं, आप मुझे पाक करेंगे। कहते बताओगे तब ना किस चीज से पाक करे। फिर बोला जब 3 मतों का मुझे पाक कीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा बताओ क्या किया तुम बताओ। तो अल्लाह के रसूल हमने जिना किया है, मैंने जिना किया है ना। तो शादीशुदा अगर कोई जिना करता है तो उसको रजम किया गया। रजम कहते हैं कि जमीन में कमर तक धंसा कर पत्थर मारे जाएंगे जब तक वो मर नहीं जाए। लड़का शादीशुदा है, जिना किया है, तो उसको रजम किया जाएगा। इस्लाम का सख्त कानून है कि उसको रजम मतलब पत्थर मारा जाएगा जमीन तक धंसा कर, ताकि वो भाग न सके चोट की वजह से। तो उसने कहा अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए। वो था, वो कौन थे? सहाबी रसूल थे, है ना। तब ना अल्लाह के रसूल के पास गए। उसके बाद उनको पत्थर मारे जाने लगा। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ एक पत्थर मारे तो उनसे खून की छींटे उनके कपड़ों पे आ गए। ठीक है। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उफ, एक ऐसा गुनाहगार का खून, गंदा खून मेरे कपड़ों पे लग गया। तो अल्लाह के रसूल ने बात सुन ली। आप ने कहा कि तुम नहीं जानते कि इसने जो तौबा की है, ऐसी तौबा की है कि 3000 लोग अगर तौबा करेंगे तो इसके तौबा से काफी हो जाएंगे। हराम काम किए थे कि नहीं किए थे? बड़ा गुनाह किए थे, तौबा किया वो, समझा नहीं ना। तो ईमान की हालत में मुसलमान होते हैं गुनाह के काम कर रहे तो गुनहगार माने जाएंगे, ऐसा नहीं कि हम बच जाएंगे। काफिर नहीं कह सकते उसको कि वो काफिर हो गया। हम सब एक सवाल है। अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाअल्लाह दोबारा दर्स को शुरू किया जाएगा। राहुल साहब एक सवाल ये था, आखिरी आयत में आपने बताया वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, फिर दो ही चीज को लिख रहे हैं कि ईमान ले और अमल सालेह किए, लेकिन सूरह असर में पूरा मुकम्मल आता है कि वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। तो अगर हम इस आयत को पढ़ रहे क्या कहेंगे तो दुआ जो चीज छूट रहा है तो क्या मुकम्मल होगी? लेकिन सवाल ये है कि दर्स का जो आखिरी हिस्सा गुजरा है वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमानदार नेक अमल किए तो हम उनको ऐसी जन्नत में दाखिल करेंगे जिसमें से नहरें जाएंगी। और सूरह असर में है कि इल्लल्लज़ीना आमनू वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, जिसमें हक और सब्र की वसीयत करने को कहा जा रहा है। तो अगर इस आयत को हम पकड़ रहे हैं तो उस आयत का माना क्या हो? यही ना। देखिए नेक अमल, अगर हम किसी को हक की वसीयत करते नेक अमल नहीं, किसी को सब्र की वसीयत करें नेक अमल। नेक अमल में हर खैर का काम, कोई इसमें लिमिटेड नहीं है। जितनी खैर और भलाई के काम है वो सब नेक अमल है, सब नेक अमल है।
हम किसी को वसीयत कर रहे हैं हक की कि भाई अल्लाह बरहक है, उस पर ईमान लाओ, है ना, हक की वसीयत है, ये नेक काम हुआ कि नहीं हुआ। आप किसी को सब्र की वसीयत करें, किसी का कोई अपना इंतकाल कर दिया, आप गए उसके घर में ताज़ियत के लिए और उसको कहे कि भाई सब्र रखें, अल्लाह के हम सब अमानत है, जिसको अल्लाह बुलाएगा उसको जाना होगा, तो आप सब्र रखें, आप अच्छी चीज़ की वसीयत कर रहे हैं। असल में आपके ज़हन में है वसीयत मतलब प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में, इसलिए आप सवाल कर रहे हैं। वसीयत सिर्फ प्रॉपर्टी की नहीं होती, किसी को सब्र की वसीयत करना भी वसीयत है। आप उसको समझा कर आए, उसको सब्र की वसीयत किए, तो सब खैर का काम है, तो इसीलिए तो वो अमलुस सालिहात कह दिया गया है। इसमें नमाज रोजा हज ज़कात अलग अलग नहीं बयान किया गया इंडिविजुअल तौर पर, सारे खैर के काम। आपको मालूम होना चाहिए कि किसी से मुस्कुरा कर बात करना भी सदका है, क्योंकि सदका करना खैर का काम नहीं है, नेक अमल नहीं है, तो सारी चीजें उसमें ईमान के साथ नेक अमल, इसलिए अल्लाह ने किसी को खास नहीं बयान किया, सारे नेक अमल करने तब अल्लाह जन्नत देगा। और सवाल है किसी का? ऑनलाइन नहीं है ना कुछ? फराज आप बोले कुछ, सबको हो गया सवाल, ऑनलाइन में कुछ ठीक है मौसम। कुरान से हट के एक सवाल है, बच्चे को ऑफ यहाँ का है ना ऑनलाइन आपका है वहाँ से क्यों? दर्स के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है इस दुआ के साथ कि अल्लाह आलमीन हम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमा लें, हमें हक बात कहने हक बात सुनने पर अमल की तौफीक अता फरमा, परवरदिगार आलम मोहम्मद से जो बीमार है उन्हें शिफा आजिला कामिला अता फरमा, जो परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर फरमा। आमीन। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिल इज्जति अम्मा यशिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।